Hello students, in this video I Bhay Kumar going to discuss a very important topic which is push-pull class B power amplifier in solid state electronics for BSc Part 3 Physics Honors courses for all universities in lecture number 13. First of all, what is क्लास बी पावर एम्पलीफायर? सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर क्या है। यदि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को बायसिंग करने पर, मतलब वोल्टेज अप्लाइड करने पर, यदि आउटपुट करंट इनपुट करंट के केवल हाफ साइकिल के लिए फ्लो करता है तो उसे क्लास बी पावर एम्पलीफायर कहा जाता है। इफ़ आफ्टर बायसिंग ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, that is when voltage is applied, then the collector current flows in the transistor for only half cycle to that of the input signal, then it is called class B power amplifier. क्लास बी पावर एम्पलीफायर में Q पॉइंट को कलेक्टर कट ऑफ वोल्टेज पर एडजस्ट किया जाता है। दैट इज Q पॉइंट वोल्टेज एक्सिस पर एडजस्ट किया जाता है। इन क्लास बी पावर एम्पलीफायर Q पॉइंट इज एडजस्टेड एट द कलेक्टर कट ऑफ वोल्टेज, दैट इज Q point is taken on the voltage axis. Now class B push pull amplifier. Why its name is push pull amplifier? The answer is, if current in one transistor, suppose transistor T1 decreases, then current in the other transistor, say T2, increases. So this power amplifier, this class B power amplifier is named as push pull amplifier. चूँकि एक ट्रांजिस्टर में करंट में अगर कमी होती है कलेक्टर करंट में, तो दूसरे ट्रांजिस्टर में करंट इंक्रीज करता है, और इसलिए इस एम्पलीफायर का नाम, इस पावर एम्पलीफायर का नाम पुश पुल एम्पलीफायर, मतलब एक ट्रांजिस्टर करंट को पुश करता है तो दूसरा उसे पुल करता है। सो इट इज नेम्ड एज पुश पुल एम्पलीफायर एंड क्लास बी बिकॉज कलेक्टर करंट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग that is collector current, that is output current flows in this amplifier only for half cycle that of the input. इनपुट सिग्नल कंप्लीट है तो उसके केवल हाफ साइकिल में ही आउटपुट करंट फ्लो करता है, इसलिए इसका नाम क्लास बी एम्पलीफायर। तो दो ट्रांजिस्टर के हेल्प से एक कंप्लीट साइन वेव फॉर्म, मतलब कंप्लीट साइन वेव फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव पल्सेस, वह कंप्लीट किया जाता है दो ट्रांजिस्टर की हेल्प से।
In class B push pull amplifier, there are two transformers, input transformer and output transformer. Collector of both transistors, here two NPN transistors are taken, and their collector, that is collector terminals of both transistors are connected to the primary coil of the output transformer, while their bases, that is base regions of both, or base terminals of both transistors T1 and T2 are connected together through the secondary coil of an input transformer, while primary of the input transformer is connected to a resistor which is RS, and input AC input source which is VS. Here is AC input signal consisting of two pulses, positive and negative. तो पुश पुल एम्पलीफायर के दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, किससे होकर? आउटपुट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से होकर। यहाँ आउटपुट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल सेंटर टैप्ड है, और इनपुट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल सेंटर टैप्ड है, जिससे नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल आउटपुट ट्रांसफार्मर के इनपुट में कितना हो जाएगा? टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, N1 एंड N1, where N1 is the number of turns in the primary coil of the output transformer between any end of the primary coil and the center tapped position of the center tapping. During the positive cycle, and here is a load resistor is connected across the secondary of the output transformer, across which output voltage consisting of a complete sine waveform is obtained, which is represented here, which is amplified relative to the input signal. Here is the input AC signal consisting of two pulses, one positive and other negative, but output AC waveform which is obtained across the load resistor is amplified. So this is the construction of class B push pull amplifier. Also collector coupled battery, that is collector battery is connected between the center tapping of the secondary of input transformer and primary of the input transformer. Here is collector coupled battery, जो कि दोनों बोथ ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर के लिए क्या है? कॉमन है. During the positive, when AC input signal is applied, during the positive half cycle of AC input signal, suppose in the A of the secondary coil of the input transformer is positive with respect to the center tapping, while other end B of the secondary transformer is negative relative to the central tapping, and in this case it is NPN ट्रांजिस्टर, या NPN ट्रांजिस्टर है. और अगर सेकेंडरी कॉइल का इनपुट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल का इंड पॉजिटिव हो गया तो NPN है, माने बेस क्या है? बेस P टाइप है. तो P और P मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, और P टाइप दोनों मतलब फॉरवर्ड बायसिंग का केस हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट करेगा. लेकिन सेकेंड ट्रांजिस्टर के साथ क्या सिचुएशन होगा? क्योंकि सेकेंड ट्रांजिस्टर के लिए
सेकेंडरी कॉइल का इंड बी निगेटिव वोल्टेज पर है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर टैपिंग, सेंटर टैप्ड सेकेंडरी कॉइल। तो सेंटर टैपिंग के रिस्पेक्ट में निगेटिव वोल्टेज पर है और यह भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इसका बेस भी क्या है, ये पी टाइप है, बेस पी टाइप है, इमीटर एन टाइप, कलेक्टर भी एन टाइप। तो इसका पी टाइप बेस पॉजिटिव पी टाइप है, दैट इज पॉजिटिव है। और सेकेंडरी कॉइल इनपुट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल बी का सेकेंड इंड बी क्या है, निगेटिव पोटेंशियल पर है। तो यह निगेटिव हो गया इंड बी और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब बेस पॉजिटिव है सेकेंड ट्रांजिस्टर का, तो क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग का केस हो गया। तो उस सिचुएशन में ट्रांजिस्टर T2 कंडक्ट नहीं करेगा, केवल ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट करेगा। और उस सिचुएशन में केवल हाफ साइकिल के लिए ही, मतलब केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही मतलब आउटपुट ऑब्टेन होगा ट्रांजिस्टर T1 के हेल्प से। T2 ट्रांजिस्टर उस समय वर्क नहीं करेगा। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC सिग्नल, AC इनपुट सिग्नल, ट्रांजिस्टर T1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, सो इट कंडक्ट्स, while other transistor T2 is reverse bias, it does not conduct. Therefore transistor T2 does not conduct. Therefore only current I1 flows in this section for I1 for first transistor, which is represented in this diagram I1, while I2 is 0 in that case. But during the negative pulse of AC input, then A becomes negative in day of the secondary of the input transformer becomes negative with respect to the center tapping, while in B of the transformer, in B of the secondary coil of the input transformer becomes negative, becomes positive with respect to the center tapping. Therefore transistor T1 does not conduct. It is in the reverse. It is the case of reverse biasing, because in day of the secondary is negative, while this is NPN transistor, so base is positive, so it is the case of reverse biasing. So transistor T1 does not conduct, but this transistor, second transistor T2 conducts. And for transistor T2, current in the circuit is, current flows through the transistor I2 as shown in the diagram, which is the collector current. And I1 is 0 during the negative half cycle of the AC input signal. The function of the output transformer is to sum up both currents, that is due to transistor T1, collector current due to transistor T1, which is I1, and current I2, collector current I2 for transistor T2 during the positive and half cycles of AC input signal. Therefore a complete sinusoidal और कंप्लीट साइन वेव फॉर्म, जो कि साइन एक्स का ग्राफ जैसा, साइन थीटा का ग्राफ जैसा नेचर का है, वह ऑब्टेन होता है लोड रजिस्टर के क्रॉस, जिसे यहाँ ऊपर में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अक्रॉस द लोड रजिस्टर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जो कि यहाँ पर डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा इस वेव फॉर्म का, लेकिन यहाँ जगह नहीं है राइट साइड में बोर्ड के, इसलिए ऊपर यहाँ आउटपुट वेव फॉर्म में यहाँ ये आउटपुट ट्रांसफार्मर के आउटपुट सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस लोड रजिस्टर, मैंने सेकेंडरी कॉइल से एक लोड रजिस्टर कनेक्टेड है, उसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ये आउटपुट वेव फॉर्म है जो कि ऑब्टेन होता है। यह आउटपुट वेव फॉर्म दैट इज आउटपुट वोल्टेज V0 इज द आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है अक्रॉस द लोड रजिस्टर RL, आउटपुट वेव फॉर्म, जिसे यहाँ ऊपर में रिप्रेजेंट किया गया है RL के ऊपर लोड रजिस्टर के। तो इस प्रकार दिस इज द वर्किंग ऑफ क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। तो राइट डाउन द वर्किंग of class B push pull amplifier during the positive half cycle of AC input यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ AC सोर्स VS कनेक्टेड है किससे, इनपुट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्या है, सेंटर, सेकेंडरी क्या है, सेंटर टैप्ड है,
बीच में कनेक्टेड है यहाँ पर दोनों, मतलब इनपुट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी से और आउटपुट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से कलेक्टर बैटरी कनेक्टेड है बीच में। तो दोनों मतलब इनपुट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल और आउटपुट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल सेंटर टैप्ड है और बीच में VCC दैट इज कलेक्टर कपुल्ड बैटरी कनेक्टेड है और कलेक्टर बैटरी कनेक्टेड है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल of AC input signal, उसमें in day of the secondary coil of the input transformer becomes positive with respect to the center tapping, while in the second end B of the secondary becomes negative with respect to the center tapping. So during the positive half cycle of AC input signal, transistor T1 conducts, that is current I flows through as the collector current in transistor T1. So during the positive half cycle of AC input signal, transistor T1 conducts while the second transistor T2 does not conduct, while transistor T2 does not conduct. Therefore, collector current I1 flows in, collector current I1 only for, collector current I1 flows in the first transistor T1, while in second transistor there is no current, that is I2 is equal to 0 in that case. Therefore, collector current for the first transistor, collector current I1 for first transistor T1 flows in the circuit, while there is no current through transistor T2. But during द निगेटिव, ये निगेटिव पल्स है AC इनपुट का, ये AC इनपुट है, AC इनपुट, यहाँ AC इनपुट को रिप्रेजेंट किया गया है वेव फॉर्म को, AC इनपुट। तो ड्यूरिंग द निगेटिव मतलब ड्यूरिंग द निगेटिव पल्स ऑफ, बट ड्यूरिंग द निगेटिव पल्स ऑफ AC इनपुट सिग्नल, मतलब AC इनपुट सिग्नल के निगेटिव चक्र के लिए, निगेटिव चक्र के लिए या निगेटिव साइकिल के लिए केवल ट्रांजिस्टर T2 कंडक्ट करेगा, इसलिए कि इसका जो बेस इमिटर जो रीजन है वह क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा उस केस में, जबकि ट्रांजिस्टर T1 के लिए बेस इमिटर रीजन क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सेकेंड टाइम फर्स्ट ट्रांजिस्टर से, इसके दैट इज I1 इक्वल टू 0, बट I2 फ्लोज एज ए कलेक्टर करंट इन द सर्किट फॉर ट्रांजिस्टर सेकेंड ट्रांजिस्टर T2. But during the negative pulse of AC input signal, transistor T2 conducts, only transistor T2 conducts, only transistor T2 conducts, and current I2, collector current I2 flows in the circuit, collector current I2, और जिसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में, collector current I2, collector current I2 flows in the circuit. In the lower part, माने in the lower part of the circuit, lower part of the circuit including second transistor T2. सर्किट के लोअर पार्ट में सेकेंड ट्रांजिस्टर T2 कनेक्टेड है, T2 कंडक्ट्स एंड कलेक्टर करंट, ओनली ट्रांजिस्टर T2 कंडक्ट्स एंड कलेक्टर करंट I2 फ्लोज इन द लोअर पार्ट ऑफ द आउटपुट सर्किट, इन द लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट
और ट्रांसफार्मर सेकेंड ट्रांसफार्मर जिसका जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसका फंक्शन क्या है, दोनों करंट मतलब करंट I1 जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इनपुट सिग्नल के लिए ट्रांजिस्टर T1 से ट्रांजिस्टर T1 में कलेक्टर करंट है, और फिर AC इनपुट सिग्नल के निगेटिव साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर T2 में जो कलेक्टर करंट है, दोनों को ऐड करना। मतलब सेकेंड आउटपुट ट्रांसफार्मर का रोल है दोनों करंट को ऐड करना, और इस प्रकार ऐड करने के दोनों करंट को ऐड करने के बाद I1 I2 को ऐड करने के बाद ड्यू टू ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 अब कंप्लीट वेव मतलब वेव फॉर्म एम्पलीफाइड वेव फॉर्म आउटपुट वेव फॉर्म ऑब्टेन होगा लोड रजिस्टर RL के अक्रॉस। आउटपुट ट्रांसफार्मर combines both currents I1 ड्यू टू ट्रांजिस्टर फर्स्ट ट्रांजिस्टर एंड I2 ड्यू टू सेकेंड ट्रांजिस्टर। I1 करंट है फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कारण पॉजिटिव इनपुट पल्स के लिए, AC इनपुट के पॉजिटिव पल्स के लिए, और AC इनपुट के नेगेटिव पल्स के लिए जब ट्रांजिस्टर T2 कंडक्ट करेगा और T1 कंडक्ट नहीं करेगा तो कलेक्टर करंट सेकेंड ट्रांजिस्टर से होकर I2 है, तो उसको क्या करेगा आउटपुट ट्रांसफार्मर दोनों को एक साथ सम अप कर देगा, तो दोनों कंबाइन कर देगा। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर कंबाइंस बोथ करंट्स I1 एंड I2 टू ऑब्टेन टोटल करंट, दैट इज टू ऑब्टेन साइन वेव फॉर्म across the load resistor in output, load resistor RL in the output to produce a sine wave form, complete sine wave form that is sinusoidal current across the load resistor RL. This is the working of class B push pull power amplifier, which is represented in this diagram. Now complementary symmetry push pull class B power amplifier. Class B push pull power amplifier can also be designed without using input and output transformers as shown in figure 2. It is a complementary symmetry push pull class B power amplifier by using NPN and PNP two transistors and two collector batteries connected to both transistors, connected to the collector of both transistors, and in the middle a load resistor RL is connected, whose other end is earthed. पुश पुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर को विदाउट ट्रांसफार्मर्स, बिना इनपुट तथा आउटपुट ट्रांसफार्मर्स के हेल्प से भी डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसा कि फिगर 2 में पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर हैविंग कंप्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें न तो इनपुट ट्रांसफार्मर है और न ही आउटपुट ट्रांसफार्मर है, केवल एक लोड रजिस्टर है RL, जिसे NPN ट्रांजिस्टर तथा PNP ट्रांजिस्टर को आपस में दो बैटरीज, कलेक्टर बैटरीज VCC फॉर NPN ट्रांजिस्टर
and for PNP transistor another collector battery which is VCC. Thus both collector terminals of that is the collector terminals of both transistors are connected, and in the middle load resistor RL is connected. और इस सर्किट को, इस पुश पुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर को कंप्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट कहा जाएगा, इसलिए कि बोथ ट्रांजिस्टर्स NPN एंड PNP आइडेंटिकल है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिकल है, समान है, सदृश्य है, क्योंकि करंट का कंडक्शन दोनों ट्रांजिस्टर्स में एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। इसका मीनिंग यह हुआ कि दोनों ट्रांजिस्टर्स NPN तथा PNP में करंट का कंडक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, जैसा कि इस डायग्राम में फिगर 2 में देखा जा सकता है। इस कंप्लीमेंट्री सर्किट वाले क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ दिस complementary symmetry push pull class B power amplifier is same to that of the class B push pull power amplifier using input and output transformers. Here input signal is fed to the transistor amplifier, that is input signal is supplied to the transistor amplifier with the help of CR network, that is capacitor resistor network. कंप्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट वाले पुश पुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल को CR नेटवर्क के हेल्प से ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को सप्लाई किया जाता है। फॉर पॉजिटिव इनपुट सिग्नल NPN transistor, that is transistor T1 is forward biased, that is this transistor conduct because base emitter junction, that is base of NPN transistor is P type, and for positive signal input signal AC input signal क्या होगा, उसका पॉजिटिव पल्स के लिए या पॉजिटिव पल्स यहाँ AC इनपुट सिग्नल का जब पॉजिटिव पल्स जब बेस पर अप्लाई होगा तो NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई होगा, तो चूंकि बेस भी क्या है, यहाँ इमीटर N टाइप है, बेस P टाइप है और कलेक्टर N टाइप है। तो बेस चूंकि पॉजिटिव है, P टाइप है, दैट इज नंबर ऑफ होल्स विच इज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, number of holes which are positive charge carriers are more than that of the minority charge carriers which are electrons in p type semiconductors. तो बेस चूंकि NPN ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव है और AC इनपुट सिग्नल के का पॉजिटिव पल्स का हाफ पॉजिटिव पल्स भी क्या है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, इसलिए उस सिचुएशन में ट्रांजिस्टर T1 NPN ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और कलेक्टर करंट I1 फ्लो करेगा लोड रजिस्टर RL से होकर, जिसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम में।
ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल, एसी इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में सेकेंड ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर जो इस सर्किट में इस सर्किट के लोअर पार्ट में बॉटम में रिप्रेजेंट किया गया है, तो यह कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि यह रिवर्स बायस में होगा, क्योंकि इसका बेस क्या है, एन टाइप है। और एसी सिग्नल का मतलब पॉजिटिव पल्स है, तो प्लस, और एन टाइप क्या है, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी अधिक होते हैं होल्स के कंपेरिजन में, पॉजिटिव चार्ज कैरियर के कंपेरिजन में। तो इसलिए सेकेंड ट्रांजिस्टर क्या होगा, कट ऑफ रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। और इसलिए तो इसे पुश पुल पावर एम्पलीफायर कहा जाता है कि जब एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है तो दूसरा कट ऑफ रहता है, एक ट्रांजिस्टर से जब करंट फ्लो करेगा तो दूसरा ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो नहीं करेगा। सो इट इज नेम्ड एज पुश पुल पावर एम्पलीफायर। इसलिए इस पावर एम्पलीफायर का नाम पुश पुल एम्पलीफायर है। क्लास बी इसलिए कि ट्रांजिस्टर को जब बायस्ड किया जाता है तो उसके कलेक्टर मतलब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में से होकर आउटपुट करंट का फ्लो इनपुट करंट का जस्ट हाफ साइकिल में होता है। और क्यू पॉइंट को एडजस्ट किया जाता है वोल्टेज एक्सिस पर, दैट इज कलेक्टर इमीटर कट ऑफ वोल्टेज पर। सो इट इज कॉल्ड क्लास बी amplifier and push pull. Its name is push pull because while one transistor T1 conducts, then T2 remains cut off. It does not conduct. In the negative pulse of AC input signal, first transistor NPN transistor T1 remains cut off. It does not conduct because it is reversed bias. बेस इसका पी टाइप है, जबकि यहाँ निगेटिव मतलब एसी इनपुट सिग्नल का निगेटिव पल्स या निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर T1 फर्स्ट ट्रांजिस्टर कट ऑफ रहेगा, यह कंडक्ट नहीं करेगा, इट डज नॉट कंडक्ट। लेकिन सेकेंड ट्रांजिस्टर जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है यह कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसका बेस क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का बेस एन टाइप सेमीकंडक्टर है और एसी इनपुट सिग्नल का वेव फॉर्म है वन साइकिल के लिए। तो निगेटिव साइकिल के लिए, निगेटिव पल्स के लिए क्या होगा, ये निगेटिव है, तो निगेटिव पल्स के लिए एसी इनपुट सिग्नल के निगेटिव पल्स के लिए निगेटिव पल्स जब यहाँ पर बेस पर अप्लाई होगा सेकेंड ट्रांजिस्टर के, जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो यह फॉरवर्ड बायस होगा। सेकेंड ट्रांजिस्टर T2 तब फॉरवर्ड बायस होगा और फॉरवर्ड बायसिंग में होने से सेकेंड ट्रांजिस्टर T2 कंडक्ट करेगा, जबकि अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा ट्रांजिस्टर T1 एसी इनपुट सिग्नल के निगेटिव पल्स के लिए रिवर्स बायस में होगा, मतलब कंडक्ट नहीं करेगा। तो सेकेंड ट्रांजिस्टर T2 कंडक्ट करेगा एसी इनपुट सिग्नल के निगेटिव पल्स के लिए, और जबकि फर्स्ट ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा और लोड रजिस्टर RL से होकर करंट I2, कलेक्टर करंट I2 फ्लो करेगा, जिसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। और यह डायरेक्शन I2 का फर्स्ट NPN ट्रांजिस्टर का एसी इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव पल्स के लिए लोड रजिस्टर RL से होकर जो करंट का फ्लो होगा, के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा कलेक्टर करंट का फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए, जो कि I1 सपोज किया गया है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंड ट्रांजिस्टर के कारण जो कलेक्टर करंट होगा उसका फ्लो होगा। और इसलिए इसका नाम कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर है, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर्स से होकर करंट का कंडक्शन एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे का क्या है, पूरक है, एक दूसरे के अपोजिट है। सो इट इज नेम्ड
एज कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री। और इस प्रकार बोथ ट्रांजिस्टर्स के कारण लोड रजिस्टर RL के क्रॉस कंप्लीट साइनोसॉइडल और साइन वेव फॉर्म ऑब्टेन होता है लोड रजिस्टर RL के क्रॉस। तो यह दिस इज द वर्किंग ऑफ ए कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल क्लास B पावर amplifier. Now we have to derive the expression for efficiency of push pull class B power amplifier. Efficiency of a class B push pull power amplifier, which is denoted by the symbol eta. पुश पुल क्लास B पावर एम्पलीफायर की इफिशियंसी रेशियो है द एफिशिएंसी ऑफ ए क्लास B पुश पुल पावर एम्पलीफायर इज द रेशियो ऑफ AC आउटपुट पावर टू द DC इनपुट पावर। मतलब क्लास B पुश पुल पावर एम्पलीफायर की इफिशियंसी, जिसे ईटा सिंबल से, इफिशियंसी को ईटा सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो इफिशियंसी ऑफ क्लास B पुश पुल क्लास B पावर एम्पलीफायर, पुश पुल क्लास B पावर एम्पलीफायर इज डिनोटेड बाई सिंबल ईटा। तो ईटा क्या हो जाएगा? आउटपुट AC पावर, दैट इज PO क्या है? PO इज द सिंबल ऑफ आउटपुट पावर। और कैसा है? AC आउटपुट पावर है अपॉन इनपुट पावर, PIN इनपुट पावर हो गया। और कैसा है? DC है। और इनपुट DC पावर कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो कलेक्टर बैटरी VCC के हेल्प से। अब आउटपुट AC पावर को क्या लिख सकते हैं? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, VRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट। तो VRMS क्या होता है? V नॉट पीक वोल्टेज बाई रूट टू। हेयर पीक वोल्टेज इज कलेक्टर बैटरी वोल्टेज VCC, दैट इज V नॉट की जगह VCC रिप्लेस करें अपॉन रूट टू मल्टीप्लाइड बाई IRMS। मतलब P आउटपुट पावर AC को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं VRMS इंटू IRMS। VRMS की जगह क्या हो गया? VCC बाई रूट टू। और IRMS की जगह क्या हो जाएगा? कलेक्टर करंट IC, जो कि पीक करंट है, कलेक्टर करंट अपॉन रूट टू अपॉन, और P इनपुट पावर DC क्या होगा? बोथ ट्रांजिस्टर के द्वारा, बोथ ट्रांजिस्टर के हेल्प से, बोथ ट्रांजिस्टर के लिए एवरेज इनपुट पावर होगा 2 इंटू IC अपॉन पाई। वन ट्रांजिस्टर के लिए हाफ, वन ट्रांजिस्टर फॉर ए हाफ साइनोसॉइड, मतलब AC इनपुट सिग्नल के किसी हाफ पल्स के लिए जो एवरेज पावर होगा किसी एक ट्रांजिस्टर के लिए, वह क्या होगा? IC अपॉन पाई। और यहाँ 2 ट्रांजिस्टर यूज होता है पुश पुल एम्पलीफायर में, और जिसके कारण कंप्लीट साइन वेव फॉर्म लोड रजिस्टर के क्रॉस ऑब्टेन किया जाता है। तो टोटल एवरेज पावर ड्यू टू बोथ ट्रांजिस्टर्स इज, तो P इनपुट DC को हम लिख सकते हैं, तो टोटल एवरेज पावर ड्यू टू बोथ ट्रांजिस्टर्स multiplied by voltage which is VCC. So 2 into IC upon pi. This is average DC power, average DC current for 2 transistors. For each transistor it is IC upon pi for the half sinusoid, that is for the half pulse
ऑफ AC इनपुट सिग्नल। तो बोथ ट्रांजिस्टर के लिए एवरेज DC पावर कितना हो गया, 2 इंटू IC अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई, सिंस पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज, वोल्टेज इज VCC। नाउ VCC कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, IC और IC भी कैंसिल हो गया। तो अब IC अपॉन पाई था डिनोमिनेटर में, तो पाई अब कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और √2 इंटू √2 दैट इज 2, और 2 भी डिनोमिनेटर में है, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो हमें क्या मिलेगा, π/4 रिजल्ट मिलेगा, ईटा इज इक्वल टू π/4। पाई का वैल्यू 3.14 रख दिया जाए तो 3.14 अपॉन 4, तो 3.14/4 इज 0.785। और चूँकि इफ़िशेंसी को परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, तो इफ़िशेंसी हो जाएगा पुशपुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर का 78.5%। ऐसे ईटा का वैल्यू कितना आ गया, π/4 इजकल टू 3.14 अपॉन 4। देयरफॉर ईटा इजकल टू 0.4 से अगर डिवाइड किया जाए, 4 से 3.14 में डिवाइड करने पर we obtain ईटा इजकल टू 0.785। और परसेंटेज के रूप में चूँकि इफिशिएंसी को एक्सप्रेस किया जाता है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देयरफॉर ईटा इजकल टू 78.5%, विच इज द इफिशिएंसी ऑफ ए पुशपुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर, विच इज मच मोर देन द efficiency of a class A push-pull power amplifier, which is just 50%. That is, the efficiency of class A push-pull power amplifier is only 50%, whereas the efficiency of push-pull class B power amplifier is 78.5%, जो कि क्लास A push-pull power amplifier से क्या है, काफ़ी अधिक है। So this is the value of efficiency of a push-pull class B power amplifier, that is eta is equal to π/4, which is 0.785, and in percentage it is 78.5%. Now this video is concluded. यह वीडियो अब समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में BSc पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स एंड फिजिक्स जनरल कोर्सेज के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वह भी एक एम्पलीफायर ही है जिसका नाम है RC कपुल्ड एम्पलीफायर, 2 स्टेज RC कपुल्ड एम्पलीफायर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल Physics Quantum Classes.